آزادی مارچ سے قبل لاہور پولیس نے زبیر نیازی کے ساتھ ساتھ بجاش نیازی کے گھر سے مبینہ طور پر جدید اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس دن صبح میں 11 بجے کا گھر سے نکلا ہوں۔ میرے بیگم کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بلائیں ورنہ آپ کے ہم بچے اٹھا کے لے جائیں گے۔ دروازے توڑ کر اندر گھس گئے، میرا اسلحہ پڑا تھا وہ اٹھا کے لے گئے۔ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے ایک گھڑی گفٹ کی تھی، یہ وہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے آزادی مارچ سے ایک روز قبل پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کے متحرک کارکنان کے اور لیڈران کے گھروں میں جا کر چھاپے مارے گئے اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ اسی طرح پولیس نے دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان کی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی نیازی ایکسپریس کے آنر بجاش خان نیازی صاحب کے گھر میں گئے اور وہاں سے جدید اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں بجاش خان نیازی صاحب سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کیا وہ کسی ریلی کی تیاری کر رہے تھے اور وہ اسلحہ جو ان کے پاس موجود تھا کیا وہ لیگل تھا، اور پولیس نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیا، ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک پیش کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتائیے گا کہ پولیس آپ کے گھر میں کیوں آئی آپ کے مطابق، اور کس ٹائم آئی گھر سے جو اسلحہ برآمد ہوا تھا کیا وہ آپ کا تھا؟ سر، جو تو میرے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا ہے وہ میرا ذاتی لائسنسی اسلحہ ہے اور اس کے ساروں کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، جو میں نے میڈیا ساروں کو دے دیے کہ یہ میرے لائسنس ہیں، یہ میں نے آپ کو دے دیے۔ مجھے سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ میرے دل میں عمران خان کی ایک رسپیکٹ ہے، میرے ایک اس کا ویژن اچھا تھا، ایک اس کا مجھے بات اچھی لگی، تو میں نے 2017 میں ان کو سپورٹ کیا، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے بعد کاروباری معاملے میرے ایسے تھے، کرونا آ گیا، آپ کے کاروبار ڈسٹرب ہو گیا، میری زیادہ فوکس میرے کاروبار کی طرف ہوگی۔ پھر یہ پلان بن گیا، اپوزیشن میں آ گیا عمران خان صاحب، تو اس میں بھی میں کسی میٹنگ میں نہیں گیا، کسی سسٹم میں نہیں گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے مجھے کیوں اپنی سیاست کا ہوس بنایا ہے، کیوں مجھے، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں کسی جا کر جلسوں جلوسوں میں جاتا، کسی میٹنگوں میں جاتا، کوئی میں بسیں دیتا، کسی قسم کا میں کوئی ایسا کام کرتا جو موجودہ گورنمنٹ کے لیے ان لیگل ہوتا تو وہ ٹھیک تھا میرے خیالات پہ۔ لیکن جب میں نہ اس مارچ کا حصہ بن رہا ہوں، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، اس دن صبح میں 11 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، مجھے کوئی فون نہیں آتا پولیس کی طرف سے، کوئی فون نہیں آتا کسی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی دوست کا بھی کہ یار آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں مسئلہ۔ میں آیا ہوں، سارے دوستوں کو سی آف کیا، ایک دوست میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے گھر چھوڑو، ٹھیک ہے۔ تو میں گھر سے بس نکلا ہوں تو 15 منٹ بعد میری فیملی کا فون آ گیا، کہتے ہیں جی باہر پولیس والے آئے ہوئے ہیں، 4 ڈالے ہیں، 25 سے 30 سرکاری وردیوں میں ہیں۔ تو میں نے عجیب مجھے لگا، میں نے کہا آپ بیٹھے رہو، شاید وہ آئے ہوں سیاسی، یہ ایز دا عمران خان نیازی کا میں رشتہ دار ہوں، میرا بھی نام نیازی ہے، میری فیملی نیازی ہے، میری کاسٹ نیازی ہے، میرا اندر خون کا ایک ایک حصہ میں نیازی فیملی ہے، میرے والد، میرے پورا خاندان جو میرا بوس، اس میں نیازی فیملی کا میرا ممبر ہوں میں، تو میں اپنی نیازی فیملی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کہ شاید آئے ہیں تو آپ صبر کریں، لیکن مجھے کب حیرانگی ہوتی گئی کہ فیملی کو وہ ہراساں کر دیا انہوں نے، شروع دروازے توڑ کر اندر گھس گئے، باتھ روم جا کر چیک کرنے لگ پڑے، اس کے بعد ماڑیاں کھول کر چیک کریں، اس کے بعد میرے مہمان خانے میں چلے گئے، ادھر میرا اسلحہ پڑا تھا وہ اٹھا کے لے گئے، میری 5 عدد گھڑیاں تھیں وہ لے گئے۔ مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آئی کہ بوٹس لے گئے، میرے سٹڈ وغیرہ اٹھا کے لے گئے، کہ یار تھوڑا سا تو محکمہ پولیس کا آپ احساس کر لیں، تھوڑا اسلحہ پکڑا گیا آپ جائیں، اسلحہ میرے پر آپ نے پرچہ دیا، میں آ کے دفاع کر رہا ہوں کہ میرے پر سنس ہے، اس کے باوجود آپ ہراساں کر رہے ہیں مجھے، آپ ایک ابھی تک کل صرف میں گھر جا کر اپنے سویا ہوں، کل دوپہر کو، پرسوں رات کو، ابھی سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گشت کر گئے ہیں، میرے گھر کے آگے سے راؤنڈ لگا کر چلے گئے ہیں۔ کس طرح کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں؟ میں کوئی دہشت گرد تو ہوں نہیں بٹ صاحب۔ ٹھیک ہے
पुलिस किस वक्त आपके घर पहुंची थी, वो टाइम क्या था, कितने घंटे पुलिस वहां पर मौजूद रही है, और कोई ऐसी चीज़ लेकर गई है जिसमें आपके बड़े कोई दिल के करीब कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ख़ास चीज़? सर जी घर मेरे पुलिस आई है कोई 3 से 3:30 बजे, और सुबह 6 से 6:30 के दरमियान वो गए। 2 से 2.5 घंटे का अरसा उधर लगे हैं। ठीक है। फिर दुख किस चीज़ का भी है, मेरे बेगम को कहते हैं कि मैं आप अपने हस्बैंड को बुलाएं वरना आपके हम बच्चे उठा कर ले जाएंगे। फिर आपने सवाल पूछा कीमती चीज़ बहुत, सबसे कीमती चीज़ घर होता है हाँ जी। जो घुस आया। चीज़ों में मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी, ये वो भी उठा कर ले गए। उनकी याद मेरे पास थी, एक दोस्तों में बैठकर मैं कह सकता था कि यार ये घड़ी मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गिफ्ट की, और आम रूटीन में मैं बताता भी था सबको। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि यार आप वो भी उठा के ले गए। पहले आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, तो उस दौरान भी क्या आपके घर में कभी रेड हुई है जब ये हालात इस तरह के ख़राब हुए हों? सर का मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई है ना जी, उस टाइम हम बिल्कुल मुस्लिम लीग नून नवाज लीग में बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े थे, सही। और हमारे घर पहली दफ़ा रेड हुई, लेकिन पुलिस मेहमान खाने के अंदर तो घुसी, मेहमान ले गई, मुलाजिम वगैरह ले गई, लेकिन हमारी जहाँ ख़वातीन का एरिया है, पर्दे की 4 दीवारी है, वहाँ पुलिस नहीं घुसी। उस टाइम एक नहीं 3-4 दफ़ा हमारे साथ वकूआ हुआ। फिर हमने बाजी मरियम कुलसूम नवाज़ा का घर जलसा भी रखा। ये जलसे से अगले दिन हमारे घर रेड हुई और उन्होंने तमाम मेहमान ले गए, तमाम हमारे मुलाजमीन ले गए। ठीक है। आपने पीटीआई कब और क्यों ज्वाइन की थी, और क्या अब भी आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? रैली के लिए कोई तैयारी कर रहे थे आप ये 25 मई को जब इमरान खान साहब? नहीं भाईजान, इस रैली का मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा था। पीटीआई का मैं हिस्सा हूँ, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने जब तक ज़िंदगी दी तो पीटीआई का हम हिस्सा रहेंगे, इमरान नियाज़ी साहब के साथ रहेंगे, और अब ज़्यादा दिल से रहेंगे, ज़्यादा हिम्मत से रहेंगे। आपने बताया था कि इंटरव्यू में कि पुलिस जितना असला आपके बारे में शो कर रही है आपके पास उससे ज़्यादा था, उससे ज़्यादा मिसिंग है, तो वो कितना था आपके पास? सर जी पुलिस वालों ने तो एफआईआर में डाला है तकरीबन 22 वेपन, जी। मैंने उनको 29 वेपन दिए। ठीक है। अभी क्योंकि मैं रात को घर गया हूँ अपने, तो मैं अभी भी चेक कर रहा हूँ, और भी शायद कोई चीज़ें मेरी मिसिंग हो सकती है, एक अद्धी गन सा वेपन मेरा हो सकता है मिसिंग। जैसे ही पुलिस आपके घर पहुंची, आप निकले तो पीछे से पुलिस आ गई। आपके घर से जब फ़ोन आया तो क्या बताया गया? उसके अलावा आपके बच्चों ने आपसे क्या कहा? सर मेरे 12 साल का बेटा है जी, माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं, घर वाइफ थी। तो बेटे ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बड़े दर्द अल्फाज से कहता है, बाबा हमारे घर ये पुलिस आई हुई है, क्यों आई हुई है? तो उस टाइम मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि यार उसको मैं अब क्या बताऊं कि मैंने अभी जुर्म भी कोई नहीं किया, और बगैर जुर्म के आपके घर पुलिस आकर खड़ी हो गई है। तो फिर ये उसको मैंने ज़रूर कहा कि बेटे हम न्याजी हैं, इमरान खान साहब न्याजी हैं, तो उसकी भेत हमें इन्होंने चलाना ही चलाना है। और जो हो रहा है, जो मुझे महसूस हुआ है कि किस हिसाब से मेरे घर उन्होंने दावा बोला और किस हिसाब से मेरे बच्चों को उन्होंने हरासा किया, ये एक अजीब बात होती है। ये बताइएगा कि आप पर मुकदमात कौन से हुए हैं, कब किए गए हैं, और उनमें क्या दफार लगाई गई हैं? दूसरा ये बताएं कि क्या आपने ज़मानत ले ली है अदालत से कबल गिरफ्तारी? जी सर जी, मेरी अभी टैरम हुई है दहशतगर्दी अदालत से जी, पहली तारीख है दहशतगर्दी अदालत की, और 780 लगाई है इन्हों पर, दहशतगर्दी लगाई है एक्ट मेरे पर। और गाड़ियाँ मेरी घर से वो टोचन करके ले जा रहे हैं दोपहर के टाइम, वो कुएं में वो सुबह के टाइम लिख रहे हैं कि हमने 5:30 वो कुएं के टाइम पकड़ी हैं। वो तकरीबन ये जो नहीं होती गाड़ी लोड करने वाले लोडर, वो लोडरों पर उठा कर लेकर गए हैं, क्योंकि बस चाबियाँ ही नहीं थी गाड़ियों की। घर से कोई कैश वगैरह भी ले गए हैं या कोई और कीमती सामान? मैंने अभी बहुत से वो तलाशी घर की कोई नहीं ली, शायद कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरी नज़र में नहीं है। तो अब भी क्या पुलिस अभी आपके इर्द गिर्द फिर रही है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस का जो मौक़िफ़ था 25 तारीख को कि हमने दहशत गर्दी करने वाला असला पकड़ लिया, दहशत गर्द बजाश नियाजी हमने पकड़ लिया, उसने इधर खूनी रैली बनानी थी,
तो उनका ये टोटल मौक़िफ़ झूठा हो गया, किसकी वजह से ये भी बुखला के शिकार हो चुकी हैं और उस चक्कर में मुझे हरासा कर रही हैं। और मैं आपके रेफरेंस से उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरता, आप कब तक हरासा कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून में आप जितना भी अरसा आपने गुजारा, वहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन क्या थी और आपकी तस्वीरें मियां नवाज शरीफ के साथ मौजूद हैं, आप गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर गए उनके साथ आप? सर मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ, जी, कश्मीर टोटल फिरा हूँ, KPK, बलोचिस्तान, सिंध, बाय रोड फिरा हूँ। ठीक है। ये नहीं कि और मैंने मियां साहब की ड्राइविंग भी करता रहा हूँ। हाँ, उनका मेहरबानी कि वो मेरे पर मेहरबानी करते थे, मुझ पर इतबार करते थे, उनकी गाड़ी में बैठता था या उनकी मैं ड्राइविंग करता था जी। और मुशर्रफ दौर में तकरीबन मैं 3 से 4 साल मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर का मैं सदर भी रहा हूँ। ठीक है। तो अब चूंकि उन्हीं की पार्टी की हुकूमत चल रही है, जी जी। तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर देख रहे हो तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब तो ऐसे आदमी नहीं थे जो हमारे साथ हुए, लेकिन फिर भी मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ अगर वो मेरी बात सुन रहे हों, उनको ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी के 22 साल आपके साथ मैंने गुजारे हैं और पूरे वफादारी के साथ गुजारे हैं। किस तरह मेरी फैमिली में पुलिस घुसी और किस तरह पुलिस ने मुझे दहशत गर्द बनाया, ये वही असला है मियां नवाज शरीफ साहब, जो नवाज शरीफ साहब का बाहर से पाकिस्तान जिला वतनी के बाद आए थे और जब मैंने उनकी सिक्योरिटी मेरे पास थी, यूथ विंग का सदर था, ये वही असला है उस टाइम का मेरे पास पड़ा असला और वही सांसें मेरे पास। कुछ नए हो सकती हैं, हाँ जी। जो 3-4 सालों से बनाए होंगे, पुराने दौर के हैं सारे मेरे पास। Thank उस you. टाइम दहशतगर्द नहीं था, आज मैं दहशतगर्द बन गया। पुलिस ने आपके घर जो रेड की है उसके हवाले से कोई आपके पास प्रूफ मौजूद है? और दूसरा, पुलिस की जो रेड थी जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि आपके घर वालों को भी हरासा किया गया है, तो जी, जी। उस हवाले से अब आप उनको टैकल करने के लिए सिचुएशन के हवाले से आप क्या लाएहमल बना रहे हैं? सर एक तो DVR पुलिस ले गई है, वो इंशाल्लाह ताला वाया कोड मैं पुलिस से DVR की रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा। ठीक है। फिर वाया कोड मैं मोटरवे से रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा कि मैं सुबह 11 बजे घर से गया और 2:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा हूँ। तीसरी बात कि जब इन्होंने डाले मेरे लोड कर मेरी सोसाइटी से बाहर लेकर गए, वो मेरी सोसाइटी के पास उनके कैमरों में है, मेरे साथ पड़ोसी रहता है, उसके कैमरों में हर चीज़ आ गई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है और इंशाल्लाह ताला मैं कोर्ट में वो टोटल प्रूफ के साथ हर चीज़ दूंगा। किस तरह मेरे घर के आगे पुलिस खड़ी थी वो भी दूंगा और इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ा प्रूफ मेरे पास ये है कि जब इन्होंने वेपन टेबल पर रखे हैं, हाँ जी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 25 की सुबह जी। कि ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने हैं, उस टाइम वहाँ पर वेपन ज़्यादा थे और FIR में वेपन वो कम रखा रहे हैं। मेरे पास तो सबसे बड़ा उनके अल्फाज भी सबूत हैं और उनके वेपन जो उन्होंने टेबल पर सजाए थे और बुलेट्स वगैरह मैगजीनें, वो सारी मेरे पास रिकॉर्ड है, जो उनका ही है रिकॉर्ड, जो मीडिया का रिकॉर्ड है। बकाया जो सांस वगैरह है वो मैंने मीडिया को दे दिए।